السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ جی تو الحمدللہ رب العالمین۔ جی مس مریم ذرا آیات تلاوت کیجئے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ اوکے جی اسٹوڈنٹس آئیں ذرا بسم اللہ کرتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ جی عروج عبید اللہ، لبنہ شیخ، فوزیہ آئیے۔ عروج عبید اللہ، قل کیا فائل ہے؟ فعل امر ہے، انت فاعل ہے۔ گڈ، اوکے۔ فوزیہ، انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ بتائیے ان اعبد اللہ کا جملے میں کیا مقام ہے؟ سر یہ مفعول بن رہا ہے امرتو کا۔ کس کا بن رہا ہے؟ امرتو کا۔ گڈ، امرتو کا مفعول ہے۔ ان کیا ہے؟ ان مصدریہ ناصبہ۔ اعبدہ منصوب کیوں ہے؟ سر ان کی وجہ سے۔ لفظ الجلالہ منصوب کیوں ہے؟ سر مفعول ہے۔ ویری گڈ۔ عابد کا فائل کیا ہے؟ انا۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ لبنہ شیخ، مخلصن کون سا اسم ہے اور منصوب کیوں ہے؟ جی سر یہ اسم الفاعل ہے اور حال بن رہا ہے سر یہ۔ اسم الفاعل ہے اور حال بن رہا ہے۔ گڈ، کس کا حال بن رہا ہے؟ جی سر انا کا حال بن رہا ہے جو عابدہ میں جی ضمیر ہے۔ ویری گڈ۔ مجھے بتائیے عروج، الدینہ منصوب کیوں ہے؟ اسم الفاعل کا مفعول ہے۔ ویری گڈ، اسم الفاعل کا مفعول ہے اور لہو متعلق ہو گیا۔ کیا ترجمہ ہوا لبنہ؟ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں خالص ہو کر اس کے دین میں۔ مخلصا لہ الدین، اس کے لیے مخلص بن کر عبادت کہ کروں۔ جی سر اس کے لیے مخلص بن کر عبادت کروں۔ اوکے، یہ امرتو کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ جی سر فعل مضارع ہے۔ مضارع۔ کیا ہے؟ پہلے مضارع فعل مجہول ہے مضارع سر۔ ہے امرتو؟ سر ماضی ہے۔ سوری ماضی مجہول ہے سر۔ ماضی مجہول ہے، گڈ۔ اور نائب الفاعل کیا ہے؟ انا ہے سر۔ آنا ہے۔ یہ مجھے بتائیے لبنہ، امرتو سے لے کر الدین تک اس کا کیا مقام ہے اس پورے آیت میں؟ جی سر خبر و انا ہو جائے گی۔ یہ خبر انا ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص ہو اللہ کی بندگی کروں، خالص ہو کر اس کی عبادت کے لیے، خالص ہو کر۔ تو یعنی اعلان کرنا ہے اس بات کا
اس کے بعد وہ امیرتو لأن اکون اول المسلمین. رخسانہ، نسیم نواز، امینہ. رخسانہ، جی امیرتو کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی مجہول ہے، نائب الفاعل کیا ہے؟ انا ہے۔ آنا ہے، یعنی اور مجھے حکم دیا گیا ہے. جی امینہ، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. سو مجھے یہ بتائیے یہ اکونا منصوب کیوں ہے؟ امینہ، نسیم نواز آپ بتائیں اکونا منصوب کیوں ہے؟ سر ان مصدریہ کی وجہ سے۔ اوکے، اول المسلمین کون سا مرکب ہے؟ سر مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی ہے. اوکے، سو اس کا جملے میں کیا مقام ہے؟ سر یہ فعل یعنی کہ کانا کی خبر بنی ہے۔ خبر ہے. کانا کا اسم کیا ہے؟ سر انا۔ آنا اس کا اسم ہے. گڈ. اور یہ ان کیا ہے؟ ان مصدریہ ہے سر۔ اور یہ لام کیا ہے؟ لام جر ہے سر۔ یہ لام جر ہے. لام جر لام مصدریہ پر آتا ہے. مس ان عظمیٰ یہ کون مصدریہ سا لام ہے؟ سر یہ تعلیل۔ لام تعلیل ہے۔ اوکے، یہ لام تعلیل ہے. تو پھر یہ ان کیا ہے؟ سر یہ ان المصدر المول ہے نا، ٹھیک جس ہے، نے آگے اس کو منسوب کیا ہے جملے کو۔ صحیح ہے. تو کیا ترجمہ ہوا اس پوری آیت کا نسیم نواز؟ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں یا ماننے والوں میں سے پہلا بنوں۔ پہلا ہوں. بعض علماء نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ یعنی اسلام لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں، یا بعض نے اس کا مطلب یوں بھی لیا ہے کہ مسلمانوں کو لیڈ کرنے والا ہوں، اول المسلمین ہوں. سو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اس بات کا اعلان کریں ان سب کے سامنے. اوکے، اس کے بعد مزید آگے چلتے ہیں. جویریہ اقصیٰ آئیے، فاقیہ آئیے، سمیہ آئیے. السلام علیکم۔ اقصیٰ، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اقصیٰ مجھے بتائیے عذاب یوم کون سا مرکب ہے؟ سر یہ مرکب توصیفی ہے۔ یہ مرکب سوری سر، توصیفی مرکب، ہے. جی کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ اضافی ہے. گڈ، ٹھیک ہو گیا، اضافی ہے. مجھے یہ بتائیے عائشہ عظیم مجرور کیوں ہے؟ یہ یومین کی صفت ہے۔ یہ یومن کی صفت ہے. گڈ. مجھے یہ بتائیے فاقیہ عذابہ منصوب کیوں ہے یہاں پر؟ جی سر، یہ عذاب جو ہے یہ مرکبی اضافی جو ہے، نہیں سر یہ مفعول بن رہا ہے سر، کس کا؟ یہ اسیتو کا. سمیہ عمران، عذابہ منصوب کیوں ہے؟ سر سر یہ یہ اخاف کا. جی ہے۔ سر، جی 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 فاقیہ بولیں. جی، اخاف کا یہ مفعول بن رہا ہے اچھا، سر. جب میں اگلے اسٹوڈنٹ کے پاس موو کر جایا کروں تو پھر انہیں بولنے دے، ٹھیک ہے؟ نہیں سوری سر، سوری. نو پرابلم. اوکے، سو یہ مفعول ہے اخافو کا. گڈ، یہ اس کا مفعول ہے. سو اخافو کا جملے میں کیا مقام ہے؟ سر یہ خبرو یہ ان فاقیہ آپ سمیہ کو بولنے دیں نا. جی جی سر. جی سمیہ بولیے. جی سر یہ خبرو انا ہے سر۔ خبر ہونا. گڈ. اخافو کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ سر یہ مضارع ہے، فاعل کیا ہے؟ انا ہے اس میں فائل۔ آنا. اوکے فاقیہ، اتنی بات کا ترجمہ مجھے بتائیے. قل انی اخاف عذاب یوم عظیم. جی، اگر میں نے نافرمانی کی نہیں اپنے رب کی. فاقیہ، جی آپ اس کا مطلب ترجمہ لکھ کر آتی ہیں اور ایز اٹ از سنا دیتی ہیں. جی سر. سیم وہی کام کر رہی ہیں آپ اس دن والا. جی سر. جی اتنی بات کا ترجمہ مجھے چاہیے. انی اخاف عذاب یوم عظیم. یقیناً میں ڈرتا ہوں، یقیناً میں ڈرتا ہوں اگر دیکھیں مس فاقیہ اگر پتہ میں نے کیا ہے؟ اب آپ سنیں میری بات. دیکھیں یہ پڑھنے کا طریقہ درست نہیں ہے. اس کا مطلب آپ نے غور نہیں کیا چیزوں پر. اگر آپ نے غور کیا ہوتا، سمیہ ترجمہ کیجئے اخاف عذاب یوم عظیم. اخاف یعنی میں ڈرتا ہوں بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ سنا آپ نے فاقیہ؟
जी सर। रट्टे और समझने में ये फर्क होता है। अगर आप लिख कर अपनी नोटबुक पर आ जाए, उस दिन भी आप यही प्रॉब्लम हो रही थी आपके साथ, आज सेम प्रॉब्लम हुई है। तो जी ये तो सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी है कि मैंने आपसे ऐसे सवाल कर लिया। हालांकि मेरे ज़हन में नहीं था कि आज भी आप वही तरीका दोहराएंगी, लेकिन आपने वही दोहरा दिया। सर असल में इस जुमले में ये रब्बी के लिए मुझे कुछ डिफिकल्टी हो रही थी, तो नहीं ना, मुझे देखिए समझ मैं में आपको नहीं आया। जुमला खुद अलग करके दे रहा हूं, मैं तो रब्बी की तरफ जा ही नहीं रहा। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं ना, अखाफ अज़ाब यौमिन अज़ीम। ये तो सिंपल जुमला पे लिया है, सिंपल, बिल्कुल सादा, कोई इसमें टेढ़ी बात नहीं है। ग्रामेटिकली बिल्कुल साफ, जो आप अपनी क्लास में पढ़ाती हैं उस तरह से। ये बिल्कुल एक सादा सा जुमला है, अखाफ अज़ाब यौमिन अज़ीम। अखाफू में फाइल आना फेल मुजारे है, अज़ाबा जी मंसूब है, यौमिन मुज़ाफ इलैह है। मैं डरता हूं एक बड़े दिन के अजाब से। जी सर। देखिए फाकिया, आप ना चीजों को इस तरह सिंपल रखें, ठीक है? और ये जी लिख कर ला कर सुनाना, दैट इज वेरी इजी। इसका मतलब फिर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी, सही है ना? इंशाल्लाह सर, मैं ठीक है, देखूंगी। तो जी आप इस सर। तरह चीजों को समझें, आप उसको, आपको तर्जुमा लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? जी जी। देखिए, अगर लिखना ही है तो लिखा हुआ तो ऑलरेडी मौजूद है, वो तो आपके सामने कुरान मजीद तर्जुमे से मौजूद है। ओके, अब बताइए फाकिया, इन असैतु रब्बी, इसमें इन क्या है? इन जो है ये शर्तिया बन रहा है सर। इन शर्तिया है। असैतु कौन सा फेल है? ये फेले माजी है। फाइल क्या है? फाइल अना है। आना है। रब्बी जुमले में क्या है? सर यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अभी असैतु के साथ इसका क्या ताल्लुक बन रहा है? फाइल है नहीं, फाइल तो अना है सर। तो बस फिर और क्या बच गया? ये मफूल सर। मफूल। क्या तर्जुमा हुआ इन असैतु रब्बी? अगर मैंने नाफरमानी की अपने रब की। अगर मैंने नाफरमानी की अपने रब की, ये जुमला शर्तिया है। इसका जवाब शर्त महजूफ कह लीजिए, लेकिन असल में इसका जवाब शर्त यही है, इन असैतु रब्बी इन्नी अखाफ अज़ाब यौमिन अज़ीम। ठीक है? जी जी सर। वाकया नेक्स्ट में ख्याल कीजिएगा, जी सही है? जी सर। जी इंशाल्लाह सर। ओके गुड सुमैया, वेरी गुड, माशाल्लाह। सना सिद्दीकी, इरम आइए। जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सना सिद्दीकी, जी सर। लफ्जुल जलाला मंसूब क्यों है? सर ये मफूल मुकद्दम बन रहा है। वेरी गुड, मफऊल मुकद्दम है। आबुदु कौन सा फेल है सना? सर माजी है, आइन बाद माजी दाल है। मादा है, अच्छा, बादल में। माजी ऐसा दिखने लग गया सॉरी है। सॉरी सॉरी सर, मुझे मुजारे मालूम है मुजारे है। 11 बज रहे हैं, माजी ऐसा ही दिखेगा। सॉरी सर, मुजारे है सर, अना का सीगा है। मुजारे है, आना फाइल है, ठीक है, गुड। जी नफी। मुझे बताइए इरम, मुखलिसन मंसूब क्यों है? सर ये जो है हाल बन रहा है अना की जमीर वेरी का गुड, वजूद में जो हाल है। बन रहा है आना फाइल का, गुड। दीनी क्या है मिस इरम? दीनी सर ये जो है मफूल बनेगा मुखलिसन का। कौन सा मुरक्कब है? ये मरकब इजाफी है सर। मुरक्कब इजाफी है, गुड। मिस इरम तर्जुमा कर दें इस आयत का। आप कह दीजिए मैं अल्लाह ही की इबादत करता हूँ, उसके दीन को उसके दीन को। देखिए यहाँ पर दीनी, दीनी इबादत के मीनिंग में आ रहा है, शुरू से हम पढ़ सॉरी रहे सर, हैं। अच्छा अच्छा चले। आप कह दीजिए मैं अल्लाह ही की इबादत करता हूँ, खालिस करते हुए अपने दीन को उसके लिए। मैं अल्लाह की के लिए अपनी बंदगी को खालिस करता हूँ। यहाँ आबुदु बंदगी है, ठीक है? बंदगी को ठीक है खालिस सर। करते हुए उसकी, सॉरी, ये दीन ही यहाँ वो नहीं, वो बंदगी ले ली, इबादत ले लीजिए। मैं इबादत करता हूँ उसी के लिए, खालिस होते हुए अल्लाह की इबादत करता हूँ। ठीक है सर। लफ्जुल जलाला मुकद्दम किया गया है आबुद पर, जी सही, सर। ताकीद के लिए, जी जी। क्योंकि आगे एक जुमला आने वाला है जिसके लिए उलमा कहते हैं कि ये वाला उसलूब इख्तियार किया गया है। आगे एक जुमला आ रहा है, वो हम देखते हैं। फअबुदू मा शिअ्तुम मिन दूनी। मुझे ये बताइए मिस इरम, फअबुदू कौन सा फेल है? फाबुदु सर फेल अमर है, आइन वेरी बादाल मादा है। वेरी गुड। क्या फाइल हुआ? अंतुम इसका फाइल है। क्या तर्जुमा हुआ? फअबुदू।
बस तुम इबादत करो। ओके, मा शिअतुम मिन दूनी। मरियम मिसबा एक्सप्लेन करे जरा जुमले को। मा शिअतुम मा मौसूला, और ये हमारे पास मफूल आ गया ये वाला जुमला। मा जो है इसम मौसूल, शिअतुम जो है हमारे पास शीन हमजा या इसका मादा है, अंतुम इसका हमारे पास फाइल है, मिन दूनी ही जो है इसको मुतअल्लिक कर ले, मिन दून मोस्टली हाल बनकर आता हाल है। कर ले। ठीक 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 उस्ताद, ठीक है। क्या तर्जुमा हुआ? फअबुदू मा शिअतुम मिन दूनी। अ, तो इसके सिवा इसकी चाहो नहीं नहीं, शुरू से तर्जुमा करें ना। फाबुदू, ओके। बस तुम इबादत करो इसके सिवा जिसकी चाहे। जिसकी चाहे इबादत करो, ठीक है, उसके सिवा जिसकी चाहे इबादत करो। तो ये तो मरियम हुक्म नहीं लग रहा, ऑर्डर दिया जा रहा है कि ठीक है तुम करो इबादत। ये क्या मकसद है इसका? उस्ताद यहाँ पे ये नहीं होगा कि मतलब जैसे हम बारात का मतलब ऐलान कर देते कि जाओ तुम वो का मतलब तुम वो वाली इबादत करो, ये जिस तरह मतलब करते नहीं है। हाँ जी, जैसे हम करते हैं जा जो मर्जी कर, या जो, हाँ जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ये वो वाला अंदाज है। फअबुदू मा जी। शिअतुम मिन दूनी। ठीक है, फिर अगर सूरत हाल ये है तो ठीक है, करो तुम जिसकी मर्जी इबादत करो जाकर, उसको छोड़कर, उसके सिवा। ओके, हुमैरा शेख। इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामा। मुझे बताइए खबरू इन्ना क्या है जुमले में? अल्लाह सीना से शुरू हो रही है। अल्लाह सीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामत। वेरी गुड, अच्छा जवाब दिया आपने, गुड माशाअल्लाह। बुशरा अदनान आइए, शादिया सोहेल आइए। जी। बुशरा अदनान, मुझे ये बताएं अनफुसहुम ये मंसूब क्यों है? ये मफूल बन रहा है खसीरू का। खासिरू का, गुड। अहलीहिम क्या है? ये भी मफूल हो जाएगा। यौमल क़ियामा क्या है? ये ये मफूल फी ही बनाया हमने। ये मफूल फी ही बनेगा या ज़र्फ बनकर मुतल्लिक भी बन सकता है। खासिरू का फाइल क्या है? खसीरू का फाइल हम। क्या तर्जुमा हुआ पूरी आयत का? कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामा। आप फरमा दीजिए यकीनन वो लोग जो खसारा उठाने वाले हैं, अल्लज़ीना नहीं, इस तरह खसिरू से नहीं है। जिन्होंने ख- खसारा उठाया। खसा खासिरीन वो हैं, खसारा उठाने वाले वो हैं। अच्छा, अल्लज़ीना खसिरू जिन्होंने अपनी नफ्सों को और अपने घर वालों को क़यामत के दिन खसारे में डाला। खसारे में डाल दिया। अपने नफ्सों को, जी, यहाँ से मुराद है अपने आप को, ठीक है। आपको जी जी। ओके मिस शाजिया, आखिरी हिस्से का तर्जुमा करें। अला ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, इसकी ग्रामर एक्सप्लेन करें पहले। जी, अला हरफ तंबी है और जालिका मुब्तदा बन रहा है, होगा ज़मीर फ़ाइल है, अल खसरानुल मुबीन इसका मार्फा होकर ये खबर बन रहा है। ये खबर बन रहा है। मुरक्कब जी सर, जालिका मुब्तदा और होगा ज़मीर फसल हो गई, और अल खसरानुल मुबीन इसकी खबर। कौन सा जालिका मुरक्कब है? की मुरक्कब तौसीफी है। ठीक है, क्या तर्जुमा हुआ? जी, याद रखो या अला का क्या खबरदार मतलब रहो होता है? कि अला को क्या कहते हैं मिस शाजिया? सर हरफ तंबी कहते हैं ना, हरफ तंबी। खबरदार। जान लो। जी, जान लो। हाँ जी, अब कब जान करें? लो जी। यही बड़ा वाज़ेह खसारा है। यही बड़ा वाज़ेह खसारा है। खुसरान असल में खासिरू का मजदर है। मजदर इसलिए ला गया कि ये उससे ज्यादा ताकतवर है, और इस्म ला गया। ठीक ओके गुड। फहीमा आइए आगे पढ़े। जी सर जी। लहुम मिन फौकिहिम जुललुम मिनन नारी व मिन तहतिहिम जुलल। इसमें मिनन सर नार जी, तक एक्सप्लेन करें। जी सही। लहुम खबर मुकद्दम है और मिन फौकिहिम इस तो मैंने हाल बनाया है क्योंकि नकरा इसम से पहले आ रहा है, जुलल उनका हाल गुड, बनाया है। सही किया बिल्कुल आपने। लहुम मिन फौकिहिम जुललुन, जुललुन जुमले में क्या है? ये मुब्तदा मौखर है। वेरी गुड। तो मिनन नारी क्या है? ये जुलल उनकी सिफ्त बन जाएगी वेरी क्योंकि वो गुड, क्या नकरा इसम तर्जुमा जब हुआ? उनके सरों नहीं, उनके ऊपर
ہاں جی सुलन सर जी साइबान साइबान क्या ओके उनके सर के ऊपर साइबान हैं आग में से हाँ जी होंगे रोज़ क़यामत है ना होंगे जी जी बिल्कुल ठीक है सही और वमिन तहतिहिम जुलल इसको एक्सप्लेन करें जी इसमें मिन जार है ताहती हिम ये मुरक्कब इजाफी हो गया और ये भी खबर मुकद्दम बनेगी नए जुमले में ठीक और है जुलल मुब्तदा मुअख्खर बनेगा क्या तर्जुमा हुआ और उनके नीचे भी साइबान हैं हाँ जी गुड मारिया शफकत आइए जी सर ज़ालिका युखव्विफुल्लाहु बिही इबादहु को एक्सप्लेन करें इबादहु जी सर ज़ालिका मुब्तदा ठीक है युखव्विफुल्लाहु बिही इबादहु ये खबर बन जाएगी जुमला फेलिया। वेरी गुड मुझे बताइए लफ्जुल जलाला मरफू क्यों है सर ये युखव्विफु का फाइल बन रहा है, इबादहु ये मंसूब क्यों है ये मुरक्कब इजाफी बन के मफऊल हो रहा है। बिही में हाँ ज़मीर कहाँ जा रही है युखव्विफुल्लाहु बिही सर ज़ालिका की तरफ इशारा ज़ालिका की की तरफ तरफ तर्जुमा करें यही है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है खौफ दिलाता है ठीक है डराता जी है ओके गुड माशाअल्लाह गुलफिशा जी सर देखें क्या लिखा है या इबादी फत्तकून जी क्या मतलब हुआ जे ये या हरफ निदा और ये इबादी उसका मुनादा हो जाएगा इसमें या मुतकल्लिम माज़ूफ है ठीक है जेर से पता लग रहा है और ये फत्तकून फिर वाव काफ या इसका मादा है अमर का सीगा है और इसमें भी या माज़ूफ है या ये मुतकल्लिम भी मफूल है क्या तर्जुमा वाव हुआ इस्तिआल जी ए मेरे बंदो मेरी इबादत मुझसे डरो है बस मेरे मुझ ही बंदो से डरो मुझ ही से डरो या इबादी फत्तकूनी अल्हम्दुलिल्लाह माजरत चाहता हूँ आज शायद आपको लगा होगा कि मेरी इन्वॉल्वमेंट उस तरह से नहीं थी असल में मैं वाकई में थक चुका था ड्यूटी के बाद एक जिक्र का लेक्चर लिया और फिर ये कुरान मजीद का लिया तो अल्लाह ताला जो है वो वही अल्लाह आफिनी फी बदनी वाली बात है तो अल्लाह ताला हमारे बदनों को आफियत अता फरमाए जज़ाकुमुल्लाहु खैरा इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद आमीन या रब्बल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू